Hello everyone, myself Bhuvnesh Kumar, and we are continuing our model algebra lecture series. In previous three lectures, we have covered group, semigroup, monoid, abelian group, then subgroup, order of element, order of group. That topic we have already covered in previous three lectures. You can check these three lectures in night there. So now today we are going to cover Cosets and Lagrange's theorem. So first we will define what is coset. Coset क्या होता है? If we take H is a subgroup of G. That is given. If we take H is a subgroup of G, it's a binary operation star, then we will define A H as a coset of H in G as A small h such that A belongs to G and a small h belongs to capital H. तो ये लेफ्ट कोसेट होता है. So AH is a left coset of H in G. Similarly, HA is the right coset of H in G. That is the definition. So if A belongs to G, then AH is a left coset such that small a star small h, where small h belongs to capital H. तो अगर हम किसी भी सबग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं एच, अगर उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उससे जो सेट बनता है वो कोसेट होता है. सिमिलरली राइट कोसेट्स. So now we will take a few theorems on coset. First is if H is a subgroup of G and H belongs to G, then H belongs to H if and only if small h is equal to H. These are sets of elements. So first we will define what is H, capital H, that is H, H dash such that H and H dash belongs to capital H. ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे. Here the given condition is if and only if. So we will prove in both ways. First is necessary condition. That means given that H belongs to capital H, now we will prove that the small h capital H is equal to H. So for that, take H belongs to H. Now take any arbitrary element H1 belongs to H. Okay. So by definition of H capital H, we can say H H1 belongs to H capital H. That is the definition. क्योंकि H के एलिमेंट क्या होंगे, इस कॉसेट के एलिमेंट वही होंगे कि हम H के जितने भी एलिमेंट है उसको स्मॉल एच से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो एलिमेंट से फॉर्म होने वाला सेट है वो हमारा एच एच हो. सो दैट इज अ element of small h capital H. Now if we take H and H1 belongs to H, and by closure property we can say H H1 belongs to H by closure property. ठीक है, so from this we started that H H1 belongs to this set. Now we ended with H H1 belongs to H. So that means small h capital H is a subset of H. Okay. Now in reverse direction, if we take H1 belongs to H, so we can write that is equal to H, और आइडेंटिटी एलिमेंट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 मल्टीप्लाई कर देते, that is belong to H. ठीक है. So from this element, now we'll take EH is equal to H1, H1 inverse H. आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ये लिख सकते हैं कि H1 inverse H1 dot H1 inverse, बिकॉज H है जो यहाँ पे H है
तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो जो H के जितने भी एलिमेंट है वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, तो इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होगा जो यूनिक होगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट this now, that is equal to H, sorry, that is equal to H1 belongs to H, so we can write E H1 belongs to H, so E H1 is equal to H. Okay, so we can write H inverse is equal into H1. So from this we can write H inverse H1, or by closure property we can say that is equal to element of H. So from this we can write H is equal to H3. Take this element as a H3. So by definition we can say this is the element of, that is belong to H, capital H. By definition, by this definition we can say this H3 is the element of small h capital H set. So from this we can say H is a subset of small h capital H. So call it equation 1 and call it equation 2. Now from 1 and 2, from 1 and 2 we can say small h is equal to capital H. Similarly we can prove that is equal to h small h, that is left coset. तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी विल टेक सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट व्हाट इज गिवन दैट this is sufficient condition, given that small h capital H is equal to h. Okay, if we take any element, suppose this H is a subgroup, so identity element will also lie in H. So E belongs to H. So from this we can take E and H belongs to capital H. So from here we can write E dot H belongs to H. ठीक है, क्योंकि H को तो हमने H ले लिया, कैपिटल H में से हमने एक एलिमेंट ले लिया E, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट E बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, रिवर्स पे हमने प्रूव कर दिया। सो दोनों तरफ से हमने प्रूव किया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। So this will be useful in our next theorem. So remember this result. ठीक है, so now we will take second theorem. If A and B are two elements of G and H is a subgroup of G, then HA is equal to HB. That implies AB inverse belongs to H. This is also in both direction. So we have to prove that HA is equal to HP. That's given. Then we have to prove AB inverse belongs to H. Then in reverse order, given that AB inverse belongs to H, that means HA is equal to HP. We will prove in both direction. So first that, given that HA is equal to HP, that is given. So from this we can write, if we take H1A belongs to HA and H2B belongs to HP. Yeah. So from these two we can write, given that this first equation, from first and second we can write H1A is equal to H2B. Okay. From these two equations we can write. Now we will take H1A or take B inverse in both sides. H2B B inverse. This B inverse is an identity element. So from this we can write H1 AB inverse is equal to H2 dot identity element, that is equal to H2. Okay. So initially we assume that
H1 and H2, H1 and H2 are belongs to कैपिटल H. ठीक है, H1 H2 है वो कैपिटल H के एलिमेंट है. तो फ्रॉम दिस वी कैन से these two are the element of H2. So from this H1 AB inverse is equal to H2. ठीक है. सो अब हमें प्रूव करना था ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. जो ए बी इनवर्स है वो एच का एलिमेंट है. तो फ्रॉम दिस अगर हम दोनों तरफ एच वन का इनवर्स ले लेते हैं क्योंकि एच वन एंड एच टू बिलोंग्स टू एच, देन दैट मीन्स एच वन इनवर्स एंड एच टू इनवर्स should also belong to H by inverse property because H is a subgroup. So from this, if we take H1 inverse in both sides, H1 inverse, okay, if we take H1 inverse in both sides, from this we can write identity element A B inverse is equal to H1 inverse H2. From this we can write A B inverse is equal to this H1 inverse H2 is equal to H3. By closure property, we can say this is the element of subgroup H. देखो यहाँ पे H हमने लिया H1 एक एलिमेंट हम H का ये ले लेते हैं और एक एलिमेंट ये ले लेते हैं H2. तो by closure property, we can say H1 inverse H2 should also belong to H. That that can be equal to H3. Suppose this is H3. So from this we can say S3. And S3 is the element of H. So from this we can say that it belongs to H. So AB inverse belongs to H. तो ये हमने प्रूव कर दिया एक बार. Now we will take second part. That is sufficient condition. This is necessary condition. So in sufficient condition, we know that if A belongs to HA, ठीक है, A belongs to HA because अगर हम H में से कोई आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, सपोज H में से हम E belongs to H and कोई भी एलिमेंट लेते हैं E belongs to G, then this by closure property we can say EA belongs to H. ठीक है. तो इसी को यूज करते हुए बता रहे हैं कि अगर H में आइडेंटिटी एलिमेंट ले सकते हैं तो H में आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं तो A बिलोंग्स टू H आएगा. ठीक है. तो इससे अगर ये हम अज्यूम कर लेते हैं तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट ए बी इनवर्स. ठीक है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H ए बी इनवर्स. ओके, ए की जगह हमने ए बी इनवर्स ले लिया क्योंकि ए बी गिवन दैट हियर इन सफिशिएंट कंडीशन गिवन दैट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H. ठीक है, तो हमें ये गिवन है तो हमें ये प्रूव करना है. तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H है तो हम अगर ए की जगह ए बी इनवर्स ले लेते हैं हम इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ अगर ये ए बी इनवर्स H का पार्ट है तो बाय प्रीवियस थ्योरम, बाय दिस थ्योरम, इफ वी टेक H स्मॉल h कैपिटल H इज इक्वल टू H, by this theorem, if H belongs to capital H, then H is equal to H. इस थ्योरम को हम यूज करेंगे. तो सिमिलरली if AB belongs to H है, ठीक है, so from this we can write AB inverse, ठीक है, AB inverse H is equal to H. ठीक है, इस थ्योरम से हम लिख सकते हैं. तो from this if 3 multiply by, okay, so तो एग्जाम्पल इसको इस तरह से ले लो. एच को हम ले लेते हैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में, ले सकते हैं, कोई डिफरेंस तो है नहीं इसमें. तो फ्रॉम दिस इफ यू टेक दैट इज इक्वल टू
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच सब देखिए, मतलब एच यहीं पे ले लो, दैट इज इक्वल टू एच। ओके, so from this we can write h ab inverse is equal to h. Now post multiply by b inverse b, तो b से हमने दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो ये सेकंड पार्ट पे हमने प्रूव कर दिया है। तो सिमिलरली हम ये लेफ्ट कोसेट के लिए प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये लेफ्ट कोसेट के लिए भी आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया है ये भी यूजफुल है, जो हम नेक्स्ट टर्म में यूज करेंगे। ठीक है, रिमेंबर दिस रिजल्ट ऑल्सो। So, in summarized form, we can write if A, B are two element of G and H is a subgroup of G, then HA is equal to HB implies AB inverse belongs to H. इस result को याद रखें. Now next theorem. If A and B are two element of a group G and H is a subgroup, same condition है कि A and B belongs to G when H is a subgroup of G. Same condition. Then A belongs to BH. That implies AH equal to BH. So इसमें भी हम पहले नेसेसरी कंडीशन को करते हैं कि given that A belongs to HBH, ये given है तो हमें ये प्रूव करना है. So similarly, if A and B are two element of G, then AB inverse belongs to G by the property of group. मतलब हम वन स्टेप टेस्ट में यही तो प्रूव करते हैं सब ग्रुप के लिए, जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, वी नो दैट। तो जी में जो भी एलिमेंट होगा वो ए बी इनवर्स शुड आल्सो बिलोंग्स टू जी बाय द वन स्टेप टेस्ट, बाय वन स्टेप टेस्ट। देखो इसमें डाउट है तो लेक्चर 1 जाके आप देख सकते हैं। वन स्टेप टेस्ट है, किसी भी सबसेट को सब प्रूव करने के लिए हम उसके दो एलिमेंट लेते हैं ए एंड बी। अगर ए बी इनवर्स बिलोंग टू सेम सबसेट जी, देन वी कैन कॉल इट सब ग्रुप। तो इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी, तो जी इज अ ग्रुप। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट, ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट ए एच इज इक्वल टू बी एच। तो जो प्रीवियस रिजल्ट है उससे हम प्रूव कर देंगे कि जो ए बी इनवर्स है, इफ यू prove that AB inverse belongs to H, then we can say AH is equal to BH. We can say, तो हमें ये प्रूव करना है कि AB belongs to H है, ठीक है। So from this we know that given that A belongs to B inverse, so given that A belongs to BH, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, B इनवर्स A belongs to बी इनवर्स बी एच, हम देख सकते हैं दोनों तरफ बी इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एच यहाँ पे सब ग्रुप है, तो इसका इनवर्स होगा ये जो बी इनवर्स ए है वो एच का एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स भी एच में नहीं करेगा क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी सेट होती है ग्रुप के अंदर। यहाँ पे एच है वो सब ग्रुप है, तो इसका जो इनवर्स है बी इनवर्स ए होल इनवर्स should also belong to H. So from this we can write A inverse B belong to H, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। सॉरी, यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी A इनवर्स B था, दैट इज A इनवर्स B। सो हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास आगे A इनवर्स B belongs to H, दैट मीन्स we can write AH is equal to
BH by second theorem by theorem 2. ठीक है, बाय थ्योरम 2 वी कैन राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी विल टेक सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट given that AH is equal to BH, that is given. Now we have to prove that A belongs to BH. तो ये भी सिंपल है। देखो ये दोनों सेम है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कि AH is equal to BH, that is BH2। ठीक है, so from these we can write, we can take H1 inverse is equal to B H2 H1 inverse, दोनों तरफ H1 inverse से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट मीन्स A is equal to B H2 H1 inverse। अब by closure property we can say, we can call it H3। तो A is equal to B H3, क्योंकि H1 H2 अगर H के एलिमेंट है तो उनके इन्वर्स भी H में लाई करेंगे। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी वी कैन से H2 H1 इन्वर्स belong to H, capital H। So from this we can write A is equal to BH3, where H3 is equal to H2 H1 inverse। ठीक है, so this is by definition of BH, we can write A belongs to BH, क्योंकि BH की डेफिनेशन होती है कि अगर H के हम किसी भी एलिमेंट के B से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो सेट बनता है वो BH होगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट A बिलोंग्स टू BH। तो ये भी सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर राइट टू सेट। तो ये प्रॉपर्टी भी काफी यूजफुल है, इसको भी हम आगे यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज any two left coset of a subgroup are either disjoint और identical। सो देखो डिसजॉइंट होंगे तो उसमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो तो होंगे, तो होंगे ही, उसमें अलग प्रूव करने की इशू नहीं है। इफ वी टेक टू कोसेट AH and BH are two coset of H in G। ठीक है, अगर हम ये दो कोसेट लेते हैं तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो AH इंटरसेक्शन BH इज एम्प्टी फाई। ठीक है, तो इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो प्रूव है, ऑलरेडी प्रूव है। नाउ सेकंड पार्ट, अगर हम लेते हैं कि AH दैट इज फर्स्ट पार्ट, ये अगर डिसजॉइंट, मतलब दोनों डिसजॉइंट है। अब हम लेते हैं कि दोनों डिसजॉइंट नहीं है, तो अब हमें प्रूव करना होगा कि वो आइडेंटिकल होंगे। तो डिसजॉइंट नहीं है मतलब AH इंटरसेक्शन BH is not equal to 5। So if we take, that means if we take C as an element that belong to AH and C also belongs to BH, ठीक है, तो ये कॉमन एलिमेंट होगा, तो वी कैन से ये फाइव मतलब खाली सेट नहीं है, ये दोनों इंटरसेक्शन में, दोनों के इंटरसेक्शन में सी आएगा ही आएगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट दिस AH takes C is equal to AH1 and this C is equal to BH2, that is equal to BH2। ठीक है, ये ले सकते हैं। नाउ अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हम जो लास्ट लास्ट प्रॉपर्टी थी कि इफ A बिलोंग्स टू BH, अगर ये प्रूव कर देंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसको हम यूज करेंगे कि हम अगर कोई भी एलिमेंट है A को हम दूसरे में प्रूव कर देते हैं, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट A, अगर हम दोनों को पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं H1 इनवर्स से, ठीक है, दोनों साइड को H1 इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है, सो we will use our last theorem, we will use this
So first was, if we take two cosets AH and BH are two cosets of H in G, तो फर्स्ट कंडीशन में है कि मान लो दोनों डिसजॉइंट है, तो ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज इक्वल टू 5। तो इसमें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डिसजॉइंट है। नाउ सेकंड, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, अगर उनमें कोई कॉमन एलिमेंट आ जाता है, ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आता है, मान लो वो कॉमन एलिमेंट सी है, तो सी बिलोंग्स टू ए एच ऑल्सो एंड सी बिलोंग्स टू बी एच ऑल्सो। ठीक है, तो ये दोनों जो सी है वो कॉमन एलिमेंट है। अब हमें प्रूव करना है कि ए एच इज इक्वल टू बी एच, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसमें प्रीवियस थ्योरम को यूज करेंगे। ये प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट था, दैट इज ए बिलोंग्स टू बी एच implies ए एच इक्वल टू बी एच। तो if we take c is equal to, from this it's c is equal to a h1, ठीक है, that is equal to b h2। यहाँ पे जो हमने ए एच का एलिमेंट लिया है वो ए एच वन है, और बी एच का जो एलिमेंट लिया है वो बी एच टू है। फ्रॉम दिस, इफ वी प्री पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एच वन इन बोथ साइड, ए एच वन इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी एच टू एच वन इनवर्स। ठीक है, तो ये एच वन इनवर्स तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए डॉट ई इज इक्वल टू बी, और इसको हम लिख लेंगे एच थ्री। ठीक है, ये भी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी वी कैन से दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू सेम सेट एच। ठीक है, so from this we can write a is equal to bh3। सो जो ए एलिमेंट है वो bh3, bh3 क्या है यहाँ पे, bh3 that means a belongs to bh, h3 here h3 is equal to h2 h1 inverse that belongs to capital H। Okay, so from this we can write a belongs to bh। तो अगर a belongs to bh है, that implies ah is equal to bh by theorem 3। ठीक है, तो थ्योरम 3 का रिजल्ट ये था कि अगर a बिलोंग्स टू बी एच है, इफ a बिलोंग्स टू बी एच है, तो ए एच इज इक्वल टू बी एच। ये थ्योरम में हमने लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया है, इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि इफ a बिलोंग्स टू बी एच है, तो ए एच इज इक्वल टू बी एच। तो ये वाला पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो कॉसेट अगर डिसजॉइंट है, मतलब दोनों में अगर डिसजॉइंट है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर दोनों में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन होता है तो मतलब उसके सारे एलिमेंट कॉमन होंगे, तो वो आइडेंटिकल ही होंगे दोनों कॉसेट। ये हमने प्रूव कर लिया। ये जो रिजल्ट है वो हम लैग्रेंजेस थ्योरम में यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ थोड़ा सा समझ लेना। सिंपल है, मतलब छोटा भी है सिंपल भी है, तो इसको एक बार रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज, इफ एच इज द सबग्रुप ऑफ जी and AB belongs to G, the relation A congruent mod H modulo H is a equivalence relation। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन में हम तीन प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है। पहली रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव, ठीक है। सेकंड है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और थर्ड इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ओके, तो फर्स्ट रिफ्लेक्टिव में हम क्या करेंगे कि हम एक ही एक में इमेज देखेंगे। तो पहले तो हम डिफाइन करेंगे ए मॉडुलो बी क्या है। ठीक है, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी modulo H means that implies A B inverse belongs to H। ठीक है,
इसका इसका जो एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग है ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. सो if we take A congruent B mod H modulo H, that means that implies, sorry, here we are reflective, we are checking reflective. So we will take A congruent A modulo H. ठीक है. So A congruent A modulo H, that means A inverse belongs to H. मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू एच, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही एच, क्योंकि एच इज अ सब ग्रुप. गिवन दैट एच इज सब ग्रुप, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी. सेकंड इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव मतलब ए का रिलेशन बी से है और बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए, दैट इज ट्रांजिटिव. तो इफ ए कॉन्ग्रुएंट बी मोडुलो एच एंड बी congruent C modulo H, that is given. So that means A B inverse belongs to H, and that means from this we can write B C inverse belongs to H. तो अगर H के दोनों एलिमेंट हैं, तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, A B inverse B C inverse should also belong to H by closure property. So from this we can write A B inverse B C inverse belong to H, or A C inverse belongs to H. So इससे हम लिख सकते हैं, that means A congruent C modulo H. ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया. थर्ड इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मतलब अगर A का रिलेशन B से है, तो दैट इम्प्लाइज B का रिलेशन A से होगा. तो ये प्रूव करना है. तो A congruent B मोडुलो H गिवन है, तो दैट मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. अगर ये एच का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी एच में लाई करेगा, तो इसका इनवर्स ले लेते हैं. तो ए बी इनवर्स होल इनवर्स बिलोंग्स टू एच. तो इसको खोल दो. सो बी ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच. सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एच, we can write we can write b congruent a मोडुलो एच. ठीक है, तो ये तीनों हमने रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक तीनों चेक कर लिए हैं, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. नाउ नेक्स्ट इज लैग्रेंज थ्योरम. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये एग्जाम में पूछते भी हैं और काफी इसकी प्रॉपर्टी काफी यूज आती है. तो ये सिंपल है वैसे. द ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप. ठीक है, तो गिवन दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये गिवन है. ठीक है, तो अगर ये सब ग्रुप है तो हम इसके कोसेट्स लेते हैं. सपोज ए एच बी एच सी एच सो ऑन आर द कोसेट्स ऑफ एच इन जी. ठीक है, और हमने अभी लास्ट टर्म में प्रूव किया है कि जितने भी कोसेट्स होंगे वो तो आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट होंगे. ठीक है, या तो वो सेम होंगे या डिसजॉइंट होंगे. तो अगर हम लेते हैं कि सपोज ये कितने भी सेट कोसेट्स हो सकते हैं, अगर जी इज ए फाइनाइट ग्रुप जी, तो जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, मतलब ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी इज सपोज फाइनाइट नंबर एन. तो अगर हम इसको लेते हैं तो ये एन एलिमेंट होंगे टोटल. तो इसमें तो कुछ लाइक सिमिलर होंगे, कुछ डिसजॉइंट होंगे. सपोज एन कोसेट्स आर डिसजॉइंट. ठीक है, तो जो एन है, टोटल एन है, उसमें से एम आर डिसजॉइंट कोसेट्स, वो बिल्कुल अलग है.
और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग हुआ n माइनस n कोसेट आर आइडेंटिकल। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट थ्योरम प्रूव किया है कि जितने भी कॉसेट होंगे ये आइदर आइडेंटिकल होंगे या ये आइदर डिसजॉइंट होंगे। तो हमने ले लिया कि n कॉसेट्स आर डिसजॉइंट एंड n माइनस n आर आइडेंटिकल कॉसेट। सो जो जी ग्रुप है उसको हम लिख सकते हैं जो डिसजॉइंट कॉसेट्स है उनके समेशन के फॉर्म में, इनके यूनियन के फॉर्म में। तो ए एच यूनियन बी एच यूनियन सी एच सो ऑन। ठीक है, तो ये होंगे टोटल एन एन टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे एन डिसजॉइंट कॉसेट्स है। तो जो डिसजॉइंट कॉसेट्स होगा उनको ऐड करने से यहाँ पे जी मिलेगा। So from this we can write, if we take order in both sides, so order of G is equal to order of this whole expression. So order of G is n, or here order of, take order of H as n। ठीक है, अगर हम इसका ऑर्डर m, क्योंकि m एलिमेंट हुए ना इसके अंदर, जो h के अंदर हमने m एलिमेंट लिए हैं, तो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे h के जो m एलिमेंट से, तो हमें m एलिमेंट मिलेंगे। वो डिफरेंट होंगे, डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि मतलब हर सेट के अंदर अलग अलग होंगे। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट ऑर्डर ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ah प्लस ऑर्डर ऑफ bh प्लस so on m टर्म्स। ठीक है, तो फ्रॉम दिस और take this as L. Okay, so take order of H is equal to L. ये सेम नहीं हो सकता ना कि अगर हमने नंबर ऑफ डिफरेंट डिसजॉइंट कॉन्सेप्ट हमने n लिए हैं, तो वो जो h के एलिमेंट है उसके बराबर नहीं हो सकता। तो जो h में जितने भी एलिमेंट है उसको हमने n ले लिया। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट ये m टाइम्स n डिसजॉइंट कॉसेट है, और हर एक जो कॉसेट है उसके अंदर n एलिमेंट होंगे, क्योंकि h के एलिमेंट n l है कि एच में टोटल एल एलिमेंट्स है। अगर हम हर एक एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे, जो एल थे वो एल के एल रहेंगे। तो जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए एच वो एल होगा, प्लस ऑर्डर ऑफ बी एच भी एल होगा, प्लस ऑर्डर ऑफ सी एच भी एल होगा। ठीक है, इस तरह से एन टाइम्स होगा, क्योंकि एन एन आपके पास डिस्टिंक्ट कॉसेट है। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट n is equal to n m, or from this we can write m is equal to n upon l। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया है कि जो ऑर्डर ऑफ h है, ऑर्डर ऑफ h इज l डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप g। यही तो हमें प्रूव करना था लैग्रेंज थ्योरम, कि फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप g। ठीक है, हेंस प्रूव। नाउ नॉर्मलाइजर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, तो किसी ग्रुप के एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर क्या होता है? नॉर्मलाइजर सेट ऑफ set of element of group G which satisfy this condition Ax is equal to Xa. So normalizer of A where A belongs to G। ठीक है, कि हम G के कोई एलिमेंट का नॉर्मलाइजर देखते हैं तो उसको डिनोट करते हैं Na से। तो Na होगा Na is equal to X belongs to G such that Ax is equal to Xa। ठीक है, कम्यूट करें तो मतलब एक या जो जो एलिमेंट जी के कंप्यूट करेंगे वो हमारा नॉर्मलाइजर का सेट बनेगा। सो फॉर अबिलियन ग्रुप, फॉर ए फॉर एन
एबिलियन ग्रुप नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू जी। एबिलियन ग्रुप होता ही यही है कि उसके हर एक एलिमेंट कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स जो यहाँ पे एक्स आएगा वो जी के सारे एलिमेंट होंगे, तभी तो वो एबिलियन ग्रुप हुआ। तो अगर जी के सारे एलिमेंट आ जाते हैं यहाँ पे तो वो जी ग्रुप ही बन जाएगा। तो एन इज इक्वल टू जी, और दैट इज स्पेशल कंडीशन फॉर एबिलियन ग्रुप। ठीक है, अगर एग्जांपल लेना है कि मान लो कोई हमारा ग्रुप है, सपोज इफ यू टेक ए ग्रुप 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये ग्रुप लेते हैं। ये ग्रुप चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और एबिलियन ग्रुप भी होगा। तो अब इसमें से हम किसी भी एक एलिमेंट का लिख देते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अगर इसको निकालते हैं तो इसमें देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास कम्यूट करेंगे। अगर हम वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कम्यूट करेगा वन, तो वो आएगा ही अपने के साथ, तो मतलब सेल्फ कम्यूटेटिव तो होता ही है। माइनस वन के साथ करते हैं तो माइनस वन के साथ करेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि वन इंटू वन दैट इज इक्वल टू वन डॉट माइनस वन, कम्यूट करेगा तो माइनस वन पे आएगा। अब वन के साथ में हम लेते हैं नॉर्मलाइजर वन, देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो वन के साथ में आप देखते हैं आयोटा, तो वन डॉट आयोटा दैट इज इक्वल टू आयोटा डॉट वन, तो ये भी आएगा। सिमिलरली माइनस आयोटा लिखेंगे, वन डॉट माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा डॉट वन, तो ये भी कम्यूट करेंगे इसके साथ में, तो माइनस आयोटा, ये पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि अभी जो ग्रुप है तो पूरा पूरा ग्रुप ही इसमें नॉर्मलाइजर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रुप। सिमिलरली है, इस सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि जी के वो एलिमेंट होते हैं, G belongs to or Z belongs to G, such that ZX is equal to XZ, where X belongs to G. So center group is a set of all conjugate element of group G called the center of group G. ठीक है, तो ये G है, जो Z है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रुप G है। तो उसका सेंटर वही होगा कि हम Z वही लेंगे, X G के वो एलिमेंट लेंगे जो एक्स के, तो ग्रुप का कोई एलिमेंट एक्स है उसके साथ कम्प्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रुप। नाउ वी विल टेक few example on base this theorem, Cosets and Lagrange's theorem. Determine the Coset decomposition of additive group of an integer relative to a subgroup of all integer multiplication 4। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि जो जी दिया है वो है ग्रुप ऑफ इंटीजर। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटीजर क्या है कि -2 -1 0 1 2, ये ग्रुप ऑफ इंटीजर है। और अब हमें जो सब ग्रुप दिया गया है एच, दैट इज इक्वल टू 4Z। दैट मीन्स अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास आता है, सपोज इसको चार से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 -4 0 4 और 8, तो दैट इज द सब ग्रुप दैट इज गिवन। सो हमें कॉसेट डिकम्पोजिशन देखनी है कि इससे कौन कौन से कॉसेट पॉसिबल है। तो कोसेट के लिए हमें क्या था कि हम जो ए लेते थे, ए बिलोंग्स टू जी, such that AH is a coset of G, coset of H in G। तो जो A है वो एलिमेंट हम G से लेते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हम ऐसे के देखेंगे यहाँ पे कि G से कौन से एलिमेंट लेते हैं। अगर हम लेते हैं और हमें यहाँ पे दिया है एडिटिव ग्रुप, ये ग्रुप इज एडिटिव, बाइनरी ऑप्शन गिवन, बाइनरी ऑप्शन इज एडिशन। तो फ्रॉम दिस इफ यू टेक H प्लस जीरो, तो जीरो इसमें आता है जी के अंदर है, तो एच प्लस जीरो इज एच। ठीक है, वो एच के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली दैट इज -8 -4 0 4 8। नाउ नेक्स्ट इज वन एच प्लस वन, यहाँ पे वन हेयर, जीरो बिलोंग्स टू जी, वन बिलोंग्स टू जी, सो एच प्लस वन इज इक्वल टू -7 -3 1 5 9। ठीक है, सो
Now H plus 2 and 2 belongs to G. So that is equal to minus 6, minus 2, 2 and 6, 10. So now H plus 3. Okay. That is equal to minus 5, minus 1, plus 1, plus that is 3, 7, that is 11. So on. ठीक है. Now H plus 4. ठीक है, 4 ऐड करेंगे, इस H के अंदर 4 ऐड करेंगे, that is equal to minus 4, 0, 4, 8 and 12. तो हम देखेंगे, अगर इसको देखते हैं H plus 4 that is equal to H only. तो इसके एलिमेंट माइनस 4, 0, 4, 8 वही है, माइनस 4, 0, 4, 8 वही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज इक्वल टू H. इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट करें, जो जो डिस्टिंक्ट या डिसजॉइंट कोसेट्स है वो यही है, जो चार डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ रहे हैं यही है. सो वी कैन राइट G इज इक्वल टू यूनियन ऑफ all disjoint cosets, distinct cosets. So that is H union H plus 1 union H plus 2 union H plus 3. Or we can write coset decomposition of a left coset, that is H union 1 plus H union 1 plus 2 plus H union 3 plus H. ठीक है, तो ये coset decomposition. So next is the prove that this is a subgroup of Z15. तो Z15 क्या है? Z15 with addition modulo 15 operation, that is equal to 0, 1, 2, 3 so on up to 14. ठीक है, तो जो ये है रिमाइंडर, अगर हम किसी भी डिजिट को, किसी भी इंटीजर को 15 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 से 14 के बीच में आएगा. तो 15 आते ही वो 15 से डिवाइड करते ही वापस रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये रिमाइंडर इसका 0 आएगा. सो इसके जो एलिमेंट होंगे वो यही होंगे. तो हमें प्रूव करना है कि जो ये एच है, एच इज 0, 3, 4, 6, 7 with addition modulo 15 is a subgroup of this. तो इसका सबग्रुप प्रूव करना है. सबग्रुप प्रूव करने के लिए हमें कोई भी दो एलिमेंट देते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू एच. तो अगर हम इसके कोई भी दो एलिमेंट का लेते हैं, सपोज ये दो को लेते हैं 3 एंड 6, दोनों को ऐड करते हैं 9 आता है. 9 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर वापस 9 ही आता है, तो वो इसी में आ रहा है. तो दैट मीन दिस इज सब ग्रुप. और कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, सपोज अपन लेते हैं 3 एंड 9, दैट इज 3 plus 9 is 12, 12 divided by 15 and remainder is the 12. Or take these two elements 9 plus 12, that is 21. 21 divided by 15, that is equal to 6. तो 6 भी इसी में आ रहा है. तो ये जितने भी हैं इनके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं. तो एक तो इस तरह से चेक कर सकते हो, नहीं तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, जो चार बेसिक प्रॉपर्टी है. फर्स्ट चीज है क्लोजर. कोई भी दो एलिमेंट को हम ऑपरेट करेंगे विद मॉडुलो ऑपरेशन 15, विद एडिशन मॉडुलो 15, तो जिसके एलिमेंट है उसी में आता है. किसी भी दो को ऑपरेट कर लीजिए तो उसी में आएंगे. देन इनवर्ट भी देखते हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होगा, तो 0 इसमें है ही आइडेंटिटी एलिमेंट. देन इनवर्ट देखते हैं, तो अगर इसमें देखते हैं 0, 3, 6, 9, 12, ये अगर हम सेट लेते हैं H is equal to this, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. अगर हम किसी को दो को चेक करते हैं 3 plus 6 डिवाइड बाय 15, दैट इज 9, तो इसमें है 9 plus 12, दैट इज 21 डिवाइड बाय 15, रिमाइंडर इज 6, तो वो भी इसमें है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है.
इन्वर्स देखते हैं, तो जीरो का इन्वर्स जीरो ही होता है, कि जीरो के अंदर जीरो ऐड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। अब थ्री है, थ्री में ऐसा कौन सा एलिमेंट को ऐड करें करने के बाद उसको डिवाइड 50 से करें तो इसका रिमाइंडर जीरो आए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है यहाँ पे, तो इसके नाम 12 को ऐड करेंगे, तो 3 + 12 is 15 divided by 15 remainder is 0, that is the identity element, that means 3 is the inverse of 12 and 12 is the inverse of 3। ठीक है, 3 का इनवर्स 12 है और 12 का इनवर्स 3 है। सिमिलरली 6 का इनवर्स, 6 में क्या ऐड करें कि 15 हो जाए, 6 में ऐड करेंगे 9, तो 6 का इनवर्स 9 है और 9 का इनवर्स 6 है, 9 का इनवर्स 6 है और जीरो का इनवर्स जीरो ही है, तो सब एलिमेंट का आ गया इसमें, 3 का आ गया, 6 का आ गया, जीरो का आ गया, 9 का आ गया, 12 का, सबका इनवर्स है। तो इन्वर्स भी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एसोसिएट भी होगी ही होगी, तो क्लोजर हो सेटिस्फाई हो ही गया, तो ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दिस एच इज अ सबसेट ऑफ जी। ठीक है, क्योंकि जी जेड है, सॉरी, एच इज अ सबसेट ऑफ जेड, तो गिवन ग्रुप इज अ जेड, दैट इज जेड, दैट इज जेड। तो होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन जो सेट है वो 0 से 14 है और 0 से 14 के बीच का ही एलिमेंट है, तो जिस एच इज अ सबसेट ऑफ जेड, तो ये जो चार बेसिक प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ फाइंड द लेफ्ट कोसेट ऑफ अबव सब ग्रुप इन जेड 15। अब इसके लेफ्ट कोसेट देखने विद एडिशन, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन दिया है वो मॉड्यूलो ऑपरेशन है, तो ये भी सिंपल है। अब हम लेंगे h+0, h+15 जीरो, जो ऑपरेशन है 15 मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 15 है, h एडिशन मॉडुलो 15 जीरो, दैट इज इक्वल टू h, सेम ही आएगा। देन h प्लस मॉडुलो 15 1, अगर हम इन सब में 1 1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास सेट बनेगा 1 4 7 10 13। अब इसको हम अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1 4 7 10 13। ठीक है, ये आ गया। एंड एच एडिशन मॉडल 15 2, दैट इज इक्वल टू 2 5 8 11 14। ठीक है, नेक्स्ट एच मॉडलो एडिशन मॉडल 15 3, 3 ऐड करो इसमें, 3 ऐड करेंगे तो ये 3। ठीक है, एच में ऐड करना है इसके अंदर, इसमें ऐड करेंगे 3 6 9 12, 15 वाला हो जाएगा जीरो। ठीक है, रिपीट हुआ क्या यहाँ पे, हाँ ये रिपीट हो गया यहाँ पे 0 3 6 9 12, ये रिपीट हो गया, तो यही डिस्टिंक्ट 4 कॉसेट्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एच एडिशन मॉडल 15 जीरो प्लस यूनियन, दैट इज यूनियन एच एडिशन मॉडल ऑफ 15 1 यूनियन एच एडिशन मॉडल ऑफ 15 2 यूनियन यूनियन एच एडिशन मॉडुलो 15 3। तो ये कॉसेट डिकम्पोजिशन हो गया, और यहाँ पे दिया गया था लेफ्ट कॉसेट की फॉर्म में लिखना है, तो आगे हमने यहाँ लिखा राइट के फॉर्म में लिखा है, सिमिलरली हम लेफ्ट के लिए लिख सकते हैं, लेफ्ट मतलब 1 + मॉडुलो 15 एच, तो उस फॉर्म में लिख रहे हो सिमिलर होता है। नाउ यहाँ पे दिया है नेक्स्ट इज फाइंड द इंडेक्स, इंडेक्स होता है ग्रुप, तो जो लेग्रांजेस थ्योरम हमने यूज की थी, लेग्रांजे थ्योरम क्या थी कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो ये जो डिवाइड कर रहा है तो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं, तो इंडेक्स एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी क्या है कि ग्रुप जी में कितने एलिमेंट है, तो इसमें ऑर्डर यहाँ से हम देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15 के 15 एलिमेंट है, दैट इज 15।
नाउ ऑर्डर ऑफ एच एच पे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 दैट इज 5 so that is 5 so order of h is equal to 5 that is equal to 3 so here in ni is the index that is equal to 3 तो इसको इंडेक्स इंडेक्स ये तरह से याद रखो इंडेक्स क्या होता है तो ये भी प्रूव हो गया so that's it for this lecture. Revise these concepts and practice few more questions in based on this Cosset and Lagrange's theorem. Thank you.